زندہ جلالی ابو فضل نام میں فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور آج جتنی بھی ناظرین گریس فار آل پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ سبوں کو ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہر روز وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آج آپ بیمار ہیں، آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں، یسوع کے پاس آ جائیے، وہ آپ کو شفا دے گا۔ مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ آپ کی تمام پرابلمز کو دور کرے گا اور آپ کی زندگی کے اندر کثرت سے کام کرے گا۔ میرے ساتھ ہوسٹ کریں خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل۔ پاسٹر عمران آپ کو ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں وش خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے پیار، اس کی محبت کے لیے۔ پریز دی لارڈ۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور اسی طرح دیکھنے والے عزیزوں کو، پیاروں کو، بھائیوں کو، بہنوں، بچوں، بزرگوں کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام، اور ہماری دعا ہے کہ آج کے دن خداوند کا روح القدس آپ کی مدد کرے اور آپ خداوند یسوع مسیح کے جلال میں بڑھتے ترقی کرتے جائیں۔ جس طرح میں ہر روز کہتا ہوں کہ ہمیں خدا کی حضوری میں شکر گزاری کرنی چاہیے ہر ایک اس بات کے لیے جو خدا نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے مقرر کیا۔ میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز ہم اٹھتے ہیں، خداوند ہماری زندگی کے اندر ایک نیا دن بخشتا ہے، صحت، تندرستی اور اسی طرح زندگی اور زندگی کی ساری نعمتوں، برکتوں کے لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ میرے عزیزوں خداوند یسوع مسیح کا شکر کرنا یقیناً خداوند جو ہے وہ شکر گزاریوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ جو خدا نے یہ ممکن کیا کہ دیکھیں کہ فضل ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے بھی جو ہے وہ خدا کا کلام گھر گھر کے اندر جا رہا ہے، لوگ ورشپ سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں اور برکت پا رہے ہیں۔ اس کا میرے عزیزوں ہم سارا جلال خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں۔ ہم بہت ساری ہر روز پرے ریکویسٹ بھی جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں، اور گوائیاں بھی جو ہے وہ بہت ساری آتی ہیں دوسرے ملکوں سے، پاکستان کے تمام شہروں سے۔ تو میرے عزیزوں، کوئی بھی شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا، کرنے والا ایک ہی ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گریس فار آل جس طرح پروگرام یہ دیکھتے ہیں، اس کے اندر خوبصورت آپ خدا کے خادموں کی اور کلام کی باتیں سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو جلال ملتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فضل کا دور ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا فضل ہی ہے جو ہم سب کے لیے کافی ہے، اور خداوند کے فضل کے اور اس کے روح القدس کے بغیر آپ اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اگر آج آپ پریشانی کے اندر ہیں، بیماری کے اندر ہیں، مشکل کے اندر ہیں، حالات چاہے کیسے بھی ہیں، خداوند کے سامنے جھک جائیے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ یقیناً جب ہم خدا کے سامنے جھکیں گے تو خدا کثرت سے کام آمین، کرے گا۔ آمین۔ پاسٹر عمران ہمارے ساتھ ٹیم موجود ہے، ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم پاسٹر زبلون دانش۔ بڑا خوبصورت پروگرام آپ دیکھتے ہیں، پرفضل باتیں، اور آپ اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں۔ جتنے بھی خادمین، مبشر، ایلڈر، ڈیکن، آپ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں ایز اے گیسٹ آئیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں خدا کے خادم پاسٹر زبلون سے یا فضل ٹی وی کے ان دیے گئے نمبرز پر، تاکہ آپ بھی آ کر خدا کی پرفضل باتوں کو شیئر کر سکیں۔ پاسٹر زبلون دانش، آپ کو ویلکم اور خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ سسٹر جی۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر مینول نذیر، آپ کو بھی پاسٹر ویلکم اور خوش Thank you so آمدید much, کہتے ہیں۔ sister. ناظرین، آپ بڑا خوبصورت پروگرام بیٹر ٹوگیدر، جو کہ ازدواجی زندگی اور فیملی لائف پر مبنی پروگرام ہے، آپ دیکھتے ہیں، برکت پا رہے ہیں، بڑا اچھا فیڈ بیک بھی بھیج رہے ہیں۔ تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں، آپ ضرور ہماری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں تاکہ خدا کثرت سے انہیں استعمال کرے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر ولسن اجاز۔ پاسٹر ولسن، آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ سسٹر۔ پریز دی لارڈ۔ تو آئیں میرے عزیزو، سب آنکھیں بند ہو جائیں، سب سے خدا ان کی حضوری میں جھک جائیں۔ ہم خدا کے خادم پاسٹر ولسن اجاز کے ساتھ مل کر دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ پریز دی پریز لارڈ۔ دی لارڈ، ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ Lord. اے زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تجھے مبارک کہتے ہیں، اور تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام سے ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں خدا، کیونکہ تیرے کلام کے اندر لکھا کام یا کلام جو کرتے ہو وہ یسوع کے نام سے کرو۔ سو ہم خداوند اس خوبصورت پروگرام کو گریس
ग्रेस फॉर ऑल तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से शुरू करते हैं खुदावंद। इस वक्त जितने हमें देख रहे हैं आज का ये प्रोग्राम उन सबों के लिए बाइस बरकत हो, और जितनी टीम इस वक्त यहाँ पर खुदावंद इस प्रोग्राम में बैठी है मैं एक एक को तेरे लहू में छुपाता हूँ। आज जितनी भी गुफ्तगू की जाए खुदावंद तेरे कलाम की रहनुमाई के अंदर हो खुदावंद खुदा, और सुनने वाले उसके वसीला से बरकत को, सरफराजी को, नजात को, बहाली को हासिल करें, और इस प्रोग्राम के वसीला से सारा इज्जत, सारा ऑनर, सारा जलाल तेरे ही कदूस नाम को मिले। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी नाज़रीन आप देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत से नाज़रीन मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से फेसबुक पर, कॉल पर, मैसेजेस के ज़रिया से हमें पूछ रहे थे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, दुआ कराना चाहते हैं। तो आप सबों के लिए हम बताना चाहते हैं कि आप ज़रूर तशरीफ़ ला सकते हैं फजल टेलीविज़न के 24 आवर्स प्रेयर सेंटर में। आप मुझसे, खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल से, तमाम फजल टीवी की टीम के खुदाम से मिल भी सकते हैं, दुआ भी करा सकते हैं। तो हम आपको दावत देते हैं आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं, और यकीनन दुआ के वसीला से खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कसरत से काम करेगा। पास्टर इमरान, कल ही की बात है कि हम देखते हैं कि खानेवाल के से भी आगे एक फार्म है, गांव है, वहाँ से सतासी फार्म, वहाँ से उन लोगों ने टीवी पर ही एड्रेस देखा और वो दुआ के लिए जो है वो आए, और यकीनन हम सब खादमीन ने मिलकर उनके लिए दुआ की। बेटी थी जिसके गुर्दे जो है डायलिसिस हो रहे हैं। मैं आपको भी कहना चाहती हूँ आप उस बेटी को भी अपनी दुआ में याद रखें, उसके डायलिसिस हो रहे हैं और वो इतना लंबा सफ़र करके सिर्फ इसीलिए आया कि उनके लिए दुआ। और मेरा ईमान है कि खुदा ने बहन को शिफा दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। और हम ईमान रखते हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि हमारा ईमान है कि खुदा ने उससे शिफा दे दी है। जब हम ईमान के साथ खुदा के सामने झुकते हैं तो यकीनन खुदा हमारी सोच से बढ़कर बड़ा काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे साथ पास्टर ज़बलून है। आप हमारी टीम के किसी भी पास्टर से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मिलना चाहते हैं, दुआ कराना चाहते हैं, किसी प्रोग्राम में एज अ गेस्ट आना चाहते हैं, तो आप तमाम खादमीन से रब्ता करें और ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। तो पास्टर ज़बलून, खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम भी जा रहा है और आप प्रेयर सेंटर में भी मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, दुआ करते हैं। तो आज जो टीवी पर नाज़रीन देख रहे हैं, ख़ास क्या बात कहना चाहते हैं उन्हें? थैंक यू सो मच सिस्टर जी। नाजरीन जितने इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि कलाम में लिखा है कि खुदा अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा देता है। हम जितने इस जगह पर मौजूद हैं या प्रेयर सेंटर में हम दुआ करते हैं तो हम यसू के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए करते हैं। वो अपना कलाम नाजिल फरमाता है। जिस तरह सिस्टर ने बताया कि कल खानेवाल से आगे एक गांव है, वहाँ से एक टीम आई थी दुआ करवाने के लिए। तो बाजी ने और पाई साहब ने मिलकर दुआ की और हम उनके साथ मुत्तफिक हुए, कलाम किया, और हमारा ईमान है कि उस कलाम के बायस खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करेगा। तो आप भी खुदावंद मसीह पर ईमान रखिए। जब हम मसीह पर ईमान रखते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में काम करता है। इस दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तारीकी है, वैरानी है, ख़राबी है, मौत अरूज पर है, लेकिन जो मसीह यसू में हैं, कलाम कहता है कि उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। हालात जैसे भी हों, वाक़या जैसे भी रूनुमा हों, चाहे वबाएँ आएँ, कोरोना जैसी वबा भी आई है, लेकिन ईमानदार जो होते हैं वो इन हालात में भी मजबूत रहते हैं, क्योंकि उनका तवक्कल, उनका भरोसा ज़िंदा खुदा पर है। और यसू ने कभी झूठ नहीं बोला, ईमानदारों से मुखातिब हुआ है, कलाम किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर यसू ने कहा कि मैं कल, आज, बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और यसू ने यह भी फरमाया कि जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरा नाम लेते हैं, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारा खुदा इस जगह पर मौजूद है, और जहाँ पर आप देख रहे हैं वहाँ भी खुदावंद मौजूद है। तो इस शो के वसीले से ज़रूर खुदावंद आपको बरकत देगा अगर आप मसीह खुदावंद पर ईमान रखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत बयान किया कि हमें खुदा के साथ लिपटे रहने की ज़रूरत है। तो यकीनन मेरे जो जिस तरह हम देखते हैं कि जब हम कलाम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं, तो ये सारे जो मौजज़ात हैं वो ईमान के वसीला से जो है वो ज़हूर में आते हैं। तो मेरे चीज़ों यकीनन आज अगर आपने अपना दिल आज से पहले खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दिया, तो अगर आपकी ज़िंदगी गुनाह के अंदर है, सिन के अंदर है, या किसी भी तरह के बुरे कामों के अंदर हैं आप, तो मेरे चीज़ों आपको ज़रूरत है
کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھ دیجئے. کہیے کہ خداوند میں اپنا دل اپنے آپ کو تجھے دیتا ہوں. تو جب آپ خدا کو دے دیں گے, توبہ کریں گے, تو پھر میرے عزیزو کوئی بیماری, پریشانی, وبا کسی طرح کی بھی آپ کو چھو بھی نہیں سکتی. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. یقیناً پاسٹر عمران جب ہم اپنے آپ کو خدا کو سونپتے ہیں تو خدا ہمیں استعمال بھی کرتا ہے. کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں لکھا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قوت طاقت پر غالب آؤ. اور اسی طرح میرے عزیزو خدا اپنے چنے ہوئے لوگوں کو, اپنے خدام کو اختیار دیتا ہے. وہ کہتا ہے جاؤ اور بیماروں کو شفا دو. تو میرے عزیزو لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر کہ تم ان پر ہاتھ رکھو گے اور وہ شفا پائیں گے. تو خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے اس اختیار کے لیے. میں, پاسٹر عمران فضل, پاسٹر ولسن اعجاز, پاسٹر مینویل, اسی طرح پاسٹر زبلون, پاسٹر ریاض ملک, پاسٹر عامر برناباس, جتنی باقی ہماری ساری ٹیم ہے, ہمارے اندر کوئی لیاقت نہیں میرے عزیزو. کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے اور ہاللیلویہ. یسوع مسیح ہے جو شفا کا منبع اور جو شافی ہے. لیکن اس بات کے لیے بھی خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب خداوند کو اپنا آپ سونپا تو خدا استعمال کر رہا ہے اور ہم خداوند ہی کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں. آمین. بالکل آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ جب خداوند کو اپنا آپ دیا تو پھر خداوند جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. تو یقیناً میرے عزیزو جب آپ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں تو یقیناً پھر میرے عزیزو خدا کیا کرتا ہے, آپ کو مسح کرتا ہے, پھر اپنے کلام کی خدمت کے لیے, انجیل کی بشارت کے لیے آپ کو استعمال کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو میرے عزیزو ہم تو دعا کر دیتے ہیں لیکن کام کس نے کرنا ہے؟ کام خدا نے کرنا ہے. ہمارے ہاتھ کے اندر کوئی طاقت, کوئی خوبی, کوئی ایسی بات نہیں. میرے عزیزو معجزات تب ہی ہوتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح کا ہاتھ بڑھتا ہے, بیمار شفا پاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اندھے دیکھتے, لنگڑے چلتے اور بدرو گرفتہ آزاد ہوتے ہیں. یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے, یہ سارا کچھ خداوند یسوع مسیح کے فضل, اس کے رول قدس کی بدولت ہے. تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو خدا اپنے خادموں کو کثرت سے فضل ٹی وی کو اور ساری ٹیم کو استعمال کر رہا ہے. میرے عزیزو اس کا ہم سارا جلال خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر ولسن اعجاز بھی موجود ہیں, تو ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. پریز دا لارڈ. بہت شکریہ بھائی صاحب. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے سارے کاموں کے لیے, اس کی شفقت کے لیے جو وہ ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر کرتا ہے. اور یقیناً خدا جو ہے وہ ہم سب کی جو ہے وہ بھلائی چاہتا ہے. آمین. اس کے منصوبے, اس کے پلانز جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑھوتی کے اور سرفرازی کے ہیں. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ان پلانز کے مطابق اپنی جستجو کو جو خدا چاہتا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں. اور سم ٹائمز وہ پلانز جو ہیں it takes time to fulfill in our life. بعض کا ان منصوبوں کو وقت لگ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہوں, لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پلیز ڈونٹ گیو اپ. ہمیں ہمیشہ خداوند کے ساتھ جو ہے وہ وفادار رہنا ہے, اور خداوند کا کلام جو ہے وہ ہماری ان باتوں کے اندر رہنمائی کرتا ہے. گریٹ تھنگس ٹیکس ٹائم. جب خدا کوئی بڑا کام ہماری زندگی کے اندر کرنا چاہتا ہے تو اٹ ٹیکس ٹائم, اور اس وقت تک ہمیں کیا کرنا ہے, وی ہیو ٹو بلڈ این آلٹر آف پریئر ٹو دا لارڈ. ہمیں خدا کے سامنے دعا میں جو ہے وہ جھکنا ہے تاکہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر ظاہر ہوتا ہوا جو ہے وہ دیکھیں. اور خدا جو ہے جیسے جیسے آپ دعا کے بحور کو خداوند کی حضوری میں اٹھائیں گے, خداوند اس بات کو, اس برکت کو, اس سرفرازی کو ہماری زندگی کے اندر کیا کرے گا, ریویل کرتا جائے گا, اور وہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتی چلی جائے گی. اور ایک وقت آئے گا کہ جو بھی خدا کا منصوبہ ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر ظاہر کرے گا, آپ کو برکت سے بھر دے گا. چاہے وہ منصوبہ آپ کی زندگی کے تعلق سے ہے, آپ کے بزنس کے تعلق سے ہے, آپ کی ایجوکیشن کے تعلق سے ہے, آپ کی ازدواجی زندگی کے تعلق سے ہے, خدا ضرور اس کے اندر اپنے فضل کو اور برکت کو جو ہے وہ ظاہر کرے گا. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. بہت خوب پاسٹر ولسن آپ نے بھی کہا. پاسٹر عمران جی. ہم اکثر اوقات جو ہے وہ دعا نہیں کرتے, تو دعا جو ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری سنتا ہے. آمین, جتنے بھی آمین. آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بیماری آئے, جب مشکل آئے, جب پریشانی آئے تو تب ہی دعا کرنی ہے. میرے جو prayer is a key to open so many doors. دعا ایک ایسی کنجی ہے جس کے وسیلہ سے
खुदा बंद दरवाज़ों को खोलता है, जिसके वसीला से आप अपने मौजज़े को हासिल करते हैं। तो अगर आज से पहले आपकी दुआ या ज़िंदगी नहीं थी, आप दुआ में वक्त नहीं स्पेंड करते, तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, एक स्पेसिफिक टाइम रखें जिस टाइम में आप खुदा से दुआ करें, अपनी सारी मुनाजातों को, फरियादों को खुदावंद की हजूरी में रखें। अगर खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में बरकत का, शिफा का, बहाली का काम किया, तो शुक्रगुजारी उसके हजूर में पेश कीजिए, क्योंकि जब आप खुदा से दुआ करते हैं, आप खुदा से गुफ्तगू करते हैं, खुदा से बातें करते हैं, और कलाम बयान करता है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, और खुदा का कान भारी नहीं कि सुन ना सके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा खूबसूरत आपने बताया कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के सामने झुकते हैं, पुकारते हैं, उससे मांगते हैं, तो यकीनन फिर खुदा Praise हमारी the दुआओं Lord। को सुनता भी है और और उसका जवाब जवाब भी भी देता देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कलाम के अंदर लिखा है कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ। खुदावंद मेरे अज़ीज़ों आपके दिल की एक एक बात को जानता है। अभी आप सोचते भी नहीं हैं तो खुदावंद उसको भी जानता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके सामने झुकें, उससे मांगें, अपने मुंह से खुदावंद से मांगें, तो फिर आसमान को वो खोलकर हमें बरकत पर बरकत देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान बिल्कुल ऐसा है। हमारे साथ पास्टर मैनुअल नज़ीर साहब भी मौजूद हैं। तो जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं दुआ के हवाले से? आज हम देखते हैं बहुत से लोग जो हैं वो दुआ नहीं करते, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं, अपने आप को खुदा के आगे सबमिट नहीं करते, या अक्सर औकात सबमिट करके फिर कुछ लम्हात के बाद, कुछ दिनों के बाद जो है दोबारा वापस अपनी आम ज़िंदगी में, रूटीन में लौट जाते हैं। या बहुत से लोग ऐसे भी हैं पास्टर मैनुअल, अगर शिफा मिल जाती है तो फिर चर्च आना भी बंद, दुआ करना भी बंद, टीवी देखना भी बंद, और फिर आम रूटीन की ज़िंदगी को शुरू कर लेते हैं। जी थैंक यू सो मच सिस्टर, बड़ी बाबरकत बात आपने अभी कही है कि बहुत सारे लोग हैं कि वो मोजज़ा पाते हैं या उनकी ज़िंदगी में जो काम रुका होता है वो चाहते हैं कि वो हो, और उसके बाद वो फिर सब कुछ आम रूटीन में ले आते हैं, और जब तक वो मोजज़े के मुंतज़र होते हैं वो मुसलसल जो है मेरे अजीज़ों वो कोशिश करते हैं कि हम खादमों से भी दुआ करवाएं और ख़ुद भी दुआ मांगें। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे सिस्टर ने पहले कहा है कुछ देर पहले कि मैं या टीम में से कोई भी, हमारी कोई लियाकत नहीं है, ये खुदावंद का फ़ज़ल है, और खुदावंद का फ़ज़ल उन पर होता है जो खुदावंद के फ़ज़ल को समझकर खुदावंद को इज़्ज़त देते हैं, टाइम देते हैं। जब शागिर्द जो हैं चुने गए, खुदावंद यीशु मसीह से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक ऐसा वक्त आया, रसूलों के अमाल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह उनको फरमाते हैं कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, ठहरे रहना और दुआ मांगते रहना। वो शागिर्द मेरे अजीज़ों जिन्होंने एक वक्त गुजारा यीशु मसीह के साथ और रात दिन रहे, उसके बावजूद यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम ठहरो और दुआ मांगो और कुव्वत का लिबास हासिल करो। तो आज खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम सब कुव्वत से भरे हुए हैं। हम सब खुदावंद की कुव्वत को हासिल कर चुके हैं, और वो इस तरह हासिल किया कि हमने खुदा की बात पर अमल किया है, खुदा के कलाम पर अमल किया है। और मुझे आपकी बड़ी अच्छी बात लगी, अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि आप लेट भी सोते हैं रात को, तो सुबह जल्दी उठकर आप फिर दुआ मांगते हैं। रात को दुआ मांग के सोते हैं, सुबह उठकर फिर दुआ मांगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको कुव्वत ऊपर से मिलनी है, और आप कुव्वत से भरे होंगे तो आप में से खुदावंद काम करेगा, और कुव्वत मरीजों में जाएगी जब, तो बीमारियां भागेंगी। तो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं मेरे अजीजों कि हम सिर्फ यहाँ पर ये नहीं कि सो के उठ के आ गए और दुआ मांगना शुरू कर दी, या जो हमारे काम है हम प्रॉपर दुआ मांगते हैं, हमारी टीम दुआ मांगती है, हम अपने लिए दुआ मांगते हैं, टीम के लिए दुआ मांगते हैं, फिर जाकर खुदा बड़े बड़े मोजज़ात करता है, और फिर दूर दराज से लोग दूसरे शहरों से आकर मोजज़ात पाते हैं, और खुदावंद उनकी ज़िंदगी में काम करता है। तो दुआ जो है वो बहुत ज़रूरी है, और दुआ ही के वजह से आप कुव्वत पाते हैं, दुआ ही की वजह से रूह कुद्दस साहब में आता है, दुआ ही की वजह से आप जो है आगे दूसरों के लिए बाइस से बरकत ठहरते हैं। और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हम बहुतों के लिए जो कमज़ोर हैं,
खुदावन ने हमें जोर दिया और हम दूसरों को जोर देने का सबब बनते हैं। आमीन 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 आमीन। खूबसूरत पास्टर महेंद्र जी। ने भी कहा यकीनन महज जब दुआ में आप ठहरते हैं, खुदा से मांगते हैं, तो वो कुव्वत का लिबास, और वो कहता है मैं अपना मददगार तुम्हें दिए जाता हूँ। और मददगार, हेल्पर हमारे लिए कौन है? खुदा का पाक रूह, रूह जो हमें कुद्दस। कुव्वत बख्शता है। और जब खुदा का पाक रूह आता है तो बंधन टूटते हैं और खुदा जकड़ों को आज़ाद करता है और बहुतों की ज़िंदगी के अंदर शिफा का, नजात का, बहाली का काम करता है। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपकी ज़िंदगी में गवाही है, स्क्रीन पर इस वक्त व्हाट्सएप का जो नंबर मौजूद है, आप इस नंबर पर अपनी गवाही रिकॉर्ड करके हमें भेजें ताकि आपकी गवाही के वसीला से यीशु के नाम को जलाल मिले। जब आप गवाही देते हैं तो आप यीशु को जलाल देते हैं। और पास्टर इमरान, हम देखते हैं यीशु ने जब उन 10 कोढ़ियों को शिफा दी, एक वापस आया तो जी। यीशु ने पूछा कि वो बाकी 9 9 कहाँ कहाँ हैं? है? दैट्स मीन कि वो चाहता है कि हम उसकी प्रेस करें। उसने उसको भी कहा कि जा और सबको दिखा कि तुझे शिफा मिली है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब आपको शिफा मिलती है, ज़रूर अपनी टेस्टिमनी दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि खुदावंद दूसरों की ज़िंदगी में भी कसरत से काम करे। जितने भी आप देख रहे हैं, अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे। दुआ के वसीला से नाज़रीन खुदावंद आपकी ज़िंदगी के बंधनों को खोलेगा। तो इसी के साथ वक्त हुआ जाता है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। और जितने भी नाज़रीन ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं, खुदा की हजूरी में झुके, अपने घुटनों को खुदावंद के आगे टेकें और अपने हाथों को खुदावंद के आगे बुलंद करें। पास्टर इमरान, मैं हमेशा कहती हूँ, वो हाथ जो दुआ में खुदा के आगे बढ़ते हैं, आमीन, वो हाथ फिर आमीन। कभी भी किसी इंसान के आगे नहीं बढ़ते, बल्कि खुदा खुद उन हाथों को प्रेज द छूता है लॉर्ड, प्रेज और द बरकत लॉर्ड, देता है। प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन जब हम हाथ उठाकर दुआ करते हैं, खुदा से मांगते हैं, जिस तरह हम गीत गाते हैं कि हाथ चुक के मंग दुआ, यीशु तेरी झोली भर देगा। तो यकीनन मेरे जो जब हम हाथ उठाकर खुदावंद से मांगते हैं तो खुदावंद फिर आसमान को, ज़मीन के सोतों खोलकर बरकत पर बरकत देता प्रेज द है। लॉर्ड। तो पास्टर इमरान, अगर हम बाइबल के अंदर देखें तो ये खुदा ने मूसा से कहा कि तेरे हाथ में क्या है, और मूसा के हाथ में एक लाठी थी, और यीशु ने जब उसको हुक्म दिया कि इस लाठी को दे और ज़मीन पर मार, तो सेम वही लाठी मिरेकल वर्किंग आमीन, लाठी आमीन। बन गई। मौजज़ात हुए उस लाठी के वसीला से। तो पास्टर इमरान, मैं चाहती हूँ आए नाजरीन को हम संडे लाइव सर्विस का सरमन सुनाए, और मेरा ईमान है इस सरमन के वसीला से ये बरकत पाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन कलाम ही है जो जिंदगियों को तब्दील करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आए नाज़रीन, हम ये खूबसूरत कलाम सुनते हैं और बरकत पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और प्रोफेसर लाम में इस वक्त जितने भी नाज़रीन फजल टेलीविज़न पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, अपने मोबाइल फ़ोन में फजल टीवी की ऐप के ज़रिया से या IPTV के ज़रिया से फजल टेलीविज़न की नशरियात इस वक्त देख रहे हैं, आप सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदा का पाक रूह आज आपकी ज़िंदगी के अंदर
कसरत से काम करें। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी खूबसूरत वर्शिप हो रही थी और जिस तरह खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि जब उसकी वर्शिप होती है, जब उसकी परस्तिश होती है तो उसका तख्त लग जाता है। तो इस वक्त मैं और आप, हम उसकी हजूरी के अंदर, हम उसके तख्त पर मौजूद हैं। वो आपके दरमियान में मौजूद है। वो पहले से ही आपकी जिंदगी के अंदर शिफा का, मौजे का, तरक्की का, बहाली का काम कर रहा है। बिकॉज मेरे अजीजों, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं that we serve a miracle working God। हम उस जिंदा खुदा की, मौजज़ात करने वाले खुदा की खिदमत करते हैं। हम इस बात के लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि मेरा और आपका यीशु मसीह, मेरा और आपका मखलसी देने वाला जिंदा है। हम इस बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए आपके और मेरे गुनाहों को मिटाने के लिए, तो मेरे अजीजों इस दुनिया पर जब वो थे तो उन्होंने मेरे और आपकी खातिर दुख उठाए, मुसीबत सही, और क्या हुआ कि उनको मार दिया गया और कब्र के अंदर डाल दिया गया। लेकिन यीशु मसीह के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के इलाही मंसूबा के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मेरे अजीजों, मेरे और आपके यीशु मसीह को मौत भी अपने कब्जा में ना रख सकी। और क्या हुआ कि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे और वो आज भी जिंदा है। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं that we worship a living God, कि मैं और आप, हम जिंदा खुदा की परस्तिश करते हैं। और जब हम जिंदा खुदा की परस्तिश करते हैं, that's mean कि वो जिंदा खुदा मेरी और आपकी दुआ को सुनता और जवाब देता है। इसका मतलब है कि ये जिंदा खुदा जब आप मुसीबत में होते हैं, जब आप मुश्किल में होते हैं, तो आपकी मदद करता है। आज जो हमने प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ी उस बहन की जो इस वक्त नाउमीदी की हालत के अंदर है, आज मेरा ईमान है कि खुदा ने अभी से उस बहन के लिए जिंदगी का ऐलान कर दिया। बिकॉज मेरा अजीजों, मेरा और आपका यीशु मसीह इसीलिए आया कि आप जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। आज जब आप कलाम को सुनेंगे तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, कुछ लम्हा के लिए अपने ध्यान को, अपनी सोच को दुनिया की बातों से हटाकर खुदा के कलाम पर ले आइए। अक्सर औकात क्या होता है, हम वर्शिप तो पूरे दिल से करते हैं, लेकिन जब कलाम हो रहा होता है तो हम अपना ध्यान इधर उधर लगा लेते हैं। और जिस कलाम के वसीला से आप सैराब होंगे, जिस कलाम के वसीला से आप बरकत पाएंगे, you miss that opportunity। आप उस मौके को खो देते हैं। आज मैं चाहती हूँ that you will not miss this opportunity, ये ग्रेट मौका जिसके वसीला से वो आपकी जिंदगी को तब्दील करे। आज इस मौके को हाथ से ना जाने दें, because I believe one word from the word of God is enough to change your entire life। इस जिंदा खुदा के कलाम का एक लफ्ज भी काफी है कि वो आपकी पूरी जिंदगी को तब्दील कर दे। If you believe you can say amen, praise the Lord। तो मेरे चीज आज खुदा के कलाम में से हम देखेंगे, चंद हवाला जात आपके सामने रखूंगी और 3 शख्सियत से और 3 मुख्तलिफ वाक़यों से आज हम सीखेंगे कि कैसे मेरा और आपका खुदा जो मौजज़ात का खुदा है वो मौजज़ा करता है। आज जो कलाम का टॉपिक है वो ये है, व्हाट इज इन योर हैंड, आपके हाथ में क्या है। और मेरे अजीजों, आज मैं इस बात को डिक्लेयर करना चाहती हूँ, आज मैं खुदा के कलाम में से इस बात को आपके लिए और आपके खानदान के लिए डिक्लेयर करना चाहती हूँ, क्लेम करना चाहती हूँ that whatever you have in your hand, God is gonna use it and God is gonna perform miracle in your life। जो कुछ आज आपके पास है, यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर, मेरा और आपका खुदा आपकी जिंदगी के अंदर उसी चीज से मौजज़ा करेगा और आपको बरकत देगा। अक्सर औकात हम कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, नहीं, यू आर वेरी स्पेशल, आप बहुत खास हैं। और जब खुदा ने आपको अपनी शबीह पर बनाया, दैट्स मीन कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है। उसने आपको खूबसूरत तौर पर बनाया एंड ही लव यू सो मच। और आपको बताना चाहती हूँ, देयर इज अ स्पेशल टैलेंट इनसाइड ऑफ यू। उसने
آپ کے اندر ایک خاص خصوصیت کو رکھا ہے. شاید دنیا اس کو دیکھ نہیں پا رہی. دنیا آپ کو کہتی ہے تو ناکام ہوگا, لیکن وہ کہتا ہے کہ تو کامیاب ہے. شاید دنیا آپ کو کہتی ہے کہ تو خاص نہیں ہے, لیکن میرے عزیزو آپ اس خدا کی نظر میں, the one who is your creator, the one who is the creator of whole universe, وہ جس نے اس کائنات کو بنایا, وہ جس نے آپ کو پیدا کیا, آپ اس کے لیے precious ہیں, آپ اس کے لیے قیمتی ہے, اور وہ آپ کی زندگی کے اندر کام کرنا چاہتا ہے. پہلی چیز جو خدا کے کلام کے اندر سے ہم دیکھیں گے وہ موسیٰ کی زندگی کے اندر سے ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ کے پاس ایک عام لاٹھی تھی, لیکن خدا نے اسی لاٹھی کو میریکل ورکنگ راڈ بنا دیا, اور اسی لاٹھی کے وسیلہ سے کیا ہوا کہ ہی پرفارم 42 miracles, اس نے 42 معجزات کیے. آئے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے خروج اس کا 4 باب اور دوسری آیت خداوند کے کلام میں سے آپ کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں. اور یہاں پر لکھا ہے, اور خداوند نے موسیٰ سے کہا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی. Praise the Lord. میرے عزیزو, what is in your hand? آج خداوند آپ سے پوچھ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں that was an ordinary لاٹھی, وہ ایک عام سی لاٹھی تھی, لیکن جب خدا اس سے پوچھتا ہے, جب خدا اس کو کوئی اسائنمنٹ دیتا ہے, جب خداوند آپ کو بھی کوئی اسائنمنٹ دے گا, تو آپ کے پاس جو چیزیں ہیں شاید آپ کو تو وہ آرڈنری لگ رہی ہیں, لیکن خدا کے حکم کے وسیلہ سے, اور جب آپ خدا کی تابعداری کریں گے, the ordinary things will become supernatural things. وہ عام چیزیں مافوق الفطرت چیزیں بن جائیں گی, اور خدا کے جلال کے لیے معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پھر ہم خدا کے کلام کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ جب موسیٰ نے وہ لاٹھی زمین پر ڈالی. اگر ہم دیکھیں اس کی نیکسٹ ورس, تو تیسری آیت کے اندر لکھا ہے اس نے اسے زمین پر ڈالا, اور اس سے پہلے حصے میں لکھا پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے. میرے عزیزو یہاں پر خدا اس کو کچھ کہنے کا حکم دے رہا ہے. آج خداوند کچھ کام کہتا ہے that we have so many questions, ہمارے پاس بہت سے سوال ہوتے ہیں. ہم آگے سے پوچھتے ہیں کیوں خدا, کیوں یہ کیا لاٹھی, تو مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, پہلے تو مجھے بتا یہ کام کیا ہے, کیا مجھے اس سے فروٹ ملے گا, کیا اس کام کے وسیلہ سے میں سکسیس پاؤں گا؟ نہیں میرے عزیزو, یہاں پر ہم موسیٰ کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ جیسے ہی خدا نے اس سے کہا کہ اس کو زمین پر ڈال دے, اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گئی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے. اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا, وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گیا, تاکہ وہ یقین کرے کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا, ابراہیم کا خدا, اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھے دکھائی دیا. میرے عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں the moment, جس لمحہ اس نے تابعداری کی, تو میرے عزیزو وہی آرڈنری راڈ جو موسیٰ کے ہاتھ میں تھا, the same rod become miracle working rod. وہی لاٹھی جو تھی وہ معجزات کرنے والی لاٹھی بن گئی. میرے عزیزو اس لاٹھی کے اندر کوئی لیاقت نہیں تھی, اس لاٹھی کے اندر کوئی پاور نہیں تھی. میرے عزیزو پاور اگر ہے تو پاور خدا کے ورڈز کے اندر ہے, وہ ان الفاظوں کے اندر تھی جو اختیار کے ساتھ خدا نے اس کو کمانڈ کیا that take this rod, کہ اس لاٹھی کو لے. اور آگے سے جس بات سے اور بھی زیادہ بلیسنگ نظر آتی ہے کہ موسیٰ کوئی سوال نہیں کرتا, موسیٰ کوئی آگے سے اور بات نہیں کہتا کہ یہ تو عام سی لاٹھی ہے یا کیا ہے, بلکہ وہ اسی وقت تابعداری کرتا ہے, اوبیڈینس کرتا ہے, اور اوبیڈین کے وسیلہ سے وہی سیم آرڈنری راڈ, اسی راڈ کے ساتھ موسیٰ نے 42 میریکلز کو پرفارم کیا. وہ جرنی, وہ سفر جس میں وہ اسرائیلیوں کو لے کر جا رہا تھا, جگہ بہ جگہ خدا اسی لاٹھی کے ذریعہ سے معجزات کرتا رہا. اور اگر ہم خدا کے کلام کے اندر دیکھیں
फिर आगे नेक्स्ट क्या हुआ, मूसा और हारून ने खुदा के हुक्म के मुताबिक किया। उसने लाठी उठाकर उसे फिरौन और उसके खादमों के सामने दरिया के पानी पर मारा और दरिया का पानी खून हो गया। मेरे अजीजों, फिर एक और मेरे ख्याल यहाँ पर हमें नजर आता है, और यहाँ पर भी क्या बात, और मूसा और हारून ने किसके हुक्म के मुताबिक किया? आज हम किन के हुक्म पर अमल करते हैं? हम इब्लीस के हुक्म पर ज्यादा अमल करते हैं बजाय के खुदा के हुक्म पर अमल करें, और इसीलिए फिर हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किलात हैं, इसीलिए हमारी जिंदगी के अंदर इब्लीस फिर प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी प्रॉस्पर हो जाए, अगर आज आप चाहते हैं जो कुछ आपके पास है वो मल्टीप्लाई हो जाए, तो मेरे अजीजों खुदा के हुक्म के मुताबिक करना शुरू कर दीजिए। Hallelujah, You need to amen. listen to the voice of the Lord. आपको खुदा की आवाज सुनने की जरूरत है। आजकल लोग इधर उधर की आवाजें सुनते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि ये खुदा की आवाज है। नहीं मेरे अजीजों, खुदा की आवाज को सुनिए। खुदा की आवाज कब सुनेंगे? जब खुदा की कुर्बत में रहेंगे, खुदा के नजदीक रहेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, तो फिर वो आपसे कलाम करेगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के अंदर गिनती 20 बाब की 11वीं आयत के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर क्या लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला, और जमायत ने और उनके चपाहों ने पिया। मेरे चीजों, 42 miracles Moses has performed with this rod. इस लाठी के साथ मूसा ने तकरीबन 42 मौजज़ात किए, जिनमें से चंद एक का जिक्र मैं आपके साथ कर रही हूँ। आप अगर पुराने अहदनामे को पढ़ें, then you are gonna see उस जर्नी को, उस सफर को आप पढ़ें। जब मूसा कौम बनी इस्राएल को गुलामी से निकाल रहा था, तो उस सफर के अंदर खुदा ने इस ऑर्डिनरी रॉड, एक सादा सी लाठी के वसीला से कैसे वो मिरेकल वर्किंग रॉड बनी, जब मूसा ने खुदा के हुक्म को माना, जब खुदा के हुक्म के मुताबिक काम किया। तो मेरे अजीजों, आज आपकी जिंदगी के अंदर से ही आज जो कुछ आपके पास है, जब खुदावंद उसको ब्लेस करेगा, जब आप खुदा की ओबीडियंस में रहेंगे, then you are gonna see the glory of God. फिर आप खुदा के जलाल को, खुदा के मौजज़ात करने वाले हाथ को अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में से दूसरा जो वाकया आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एक नौजवान छोटा लड़का, आपने बहुत दफा इस वाक्य को खुदा के कलाम के अंदर पढ़ा। आए अगर हम देखें यूहन्ना की इंजील उसके 6वें बाब की 9वीं आयत के अंदर, तो मेरे अजीजों यहाँ पर यीशु मसीह हमें नजर आते हैं और यीशु के चौगिर्द बड़ी भीड़ जमा है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। वो अरसा, वो टाइम पीरियड व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज ऑन दिस अर्थ, जब यीशु मसीह इस दुनिया पर था, जहां कहीं पर भी वो जाता वो मौजज़ात करता। उसने अंधों की आंखों को खोला, उसने लंगड़ों को चलाया, उसने बदरू गिरफ्तों को रिहाई बख्शी, उसने कोड़ियों के कोड़ को पाक और साफ किया। ना सिर्फ कोड़ियों के कोड़ को पाक साफ किया, बल्कि मुर्दा लाजर को भी जिंदा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह शेफा का मंबा, यहाँ पर हम देखते हैं मेरे अजीजों, इस वाक्य के अंदर यू हैव हर्ड दिस स्टोरी मेनी टाइम्स, आपने बहुत दफा ये कहानी सुनी है। यहाँ पर एक बड़ी भीड़ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हमें एक छोटा बच्चा, a young boy who has 5 loaves and 2 fishes, एक छोटा बच्चा जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, और उसके वसीला से कितना बड़ा मौजज़ा हुआ। क्या हुआ? 5000 अप्रोक्सीमेटली 5000 सिर्फ मर्द थे, और उससे एडिशन में बहुत सी औरतें भी थी और बहुत से बच्चे भी थे। आज अगर हम किसी इबादत के अंदर देखें, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, तो ज्यादा तादाद में बहनें होती हैं। इसलिए सिर्फ कह रही हूँ सो दैट यू कैन इमेजिन, ताकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ 5 रोटियों और 2 मछलियों के वसीला से उसने 5000 मर्द और इससे जायद औरतें और बच्चे थी उनको खिलाया, और उसके बाद भी बच गया।
मेरे अजीजों, whatever the young boy has, वो छोटे बच्चे के पास जो कुछ था, यीशु ने जब उसको लिया, और अगर हम कलाम के अंदर आए, हम इस आयत को पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 6वां बाब, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तमजीद हो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी और उसका प्यार निराला है, प्रेज द लॉर्ड। उसके 6वें बाब की 9वीं आयत अगर हम खुदा के कलाम में पढ़ें तो उसके शागिर्दों ने यहाँ पर उससे मुखातिब होते हुए कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है। उसके शागिर्द भी परेशान थे, वो भी इस भेद को नहीं जानते थे, वो भी भूल गए कि जो उनके साथ है वो सबसे बड़ा है, वो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है। आपका भी आज यही हाल है, आप भी भूल चुके हैं, आप इस बात को अंदाजा भी नहीं लगाते, और अक्सर का जब मुश्किल आती है तो आप परेशान हो जाते हैं और समझते हैं कि ये मुश्किल शायद आपको मार देगी। मेरा जीजो, हमेशा याद रखें कि आपका मखलसी देने वाला जिंदा है। He had paid a price for you, उसने एक बड़ी कीमत आपके लिए अदा की है, तो वो कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी आपको हलाकत में नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरा जीजो, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो कुछ आपके पास है, अक्सर औकात आप सोचते हैं कि शायद कुछ मुझे मिलेगा तो फिर ही then I am gonna start working, फिर ही काम शुरू करूंगा या फिर ही मौजज़ा होगा। आज मैं आपको ईमान से ये कहती हूँ, whatever you have, जो कुछ आपके पास है उसे खुदा के हाथ पे दे दीजिए, तो खुदावंद आपकी जिंदगी में आज ही मौजज़ा करेगा। He is gonna bless you and your family, वो आपको और आपके खानदान को बरकत देगा, वो आपके खानदान के बीच से बीमारी को दूर कर देगा, वो आपको कसरत की जिंदगी का वारिस बनाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस छोटे बच्चे के पास जो कुछ था उसने दे दिया। यहाँ से मैं छोटे बच्चे की जिंदगी से भी बड़ी खूबसूरत बात सीखने को मिलती है। पहली बात जो हमने मूसा की जिंदगी से सीखी कि क्या मूसा ने ओबीडियंस की, जो कुछ खुदा ने उसको करने के लिए कहा उसने किया। यहाँ पर इस छोटे बच्चे से हमें सीखने को मिलता है। And I must appreciate and I really want to appreciate the mother of this child, इस छोटे बच्चे की माँ को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। The way, जिस तरीके से माँ ने बच्चे की परवरिश की, माँ ने बच्चे को गिविंग सिखाई, देना सिखाया। आज हमारे अंदर गिविंग की स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं है। हम बड़ी बातें तो करते हैं, मैंने फलां शख्स के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, जस्ट दिखावे के लिए। अगर कोई नीडी शख्स हमारे पास आता है, घर के अंदर ही हम देख लें, आज हर शख्स अपनी अपनी दौड़ में भाग रहा है, हर शख्स अपने अपने लिए मेहनत कर रहा है, मैं अपने लिए इकट्ठा कर लूं, जमा कर लूं। मेरे चीज़ों नहीं, आज जितने वालिदैन देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज इस बच्चे की माँ को देखिए, उससे सीखिए कि कैसे उसने इस बच्चे की कलाम के मुताबिक परवरिश की, इस बच्चे को गिविंग सिखाया। घर से ही शायद की माँ ने कहा होगा कि बेटा अगर वहां पर कोई और भी होगा तो तू उसके साथ जरूर अपने लंच को, अपने टिफिन को शेयर करना। और मेरा चीज़ों, क्या हम इस बच्चे से सीखते हैं कि जो कुछ उसके पास था उसने यीशु को प्रेजेंट कर दिया, और उस बच्चे के पास बहुत थोड़ा था, सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां, लेकिन मेरे चीज़ों जब यीशु को दे दिया, प्रेज द लॉर्ड, वो जो शाफी है, वो जो शिफा का मंबा है, वो जो बड़े बड़े काम करता है, वो जहां बोता भी नहीं वहां से काटने की कुदरत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे चीज़ों, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, यीशु ने कहा लोगों को बिठाओ, और फिर हम उसके बाद देखते हैं कि यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उनको जो वहीं बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। और फिर क्या हुआ, जब वो सैर हो चुके तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा बचे हुए टुकड़ों को जमा करो, और जो लेफ्ट ओवर था, और उन्होंने कहा ताकि कुछ जाया ना हो, चुनाचे उन्होंने जमा किया, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से
बच रहे थे 12 टोकरियां भरी. प्रेज द लॉर्ड. सुपरनैचुरल मिरेकल्स, माफोकल फितरत, माजिज़ात करने की कुदरत मेरा और आपका यीशु मसीह रखता है. और फिर यहाँ पर बड़ा माजिज़ा हुआ. कैसे? जो कुछ उस बच्चे के पास था उसने यीशु के हाथ में दे दिया. आज मैं भी आपको कहना चाहती हूँ, whatever you have, give it to the Lord. अगर आपके पास रुपया पैसा है, खुदा ने आपको फाइनेंशियली ब्लेस किया है, इन्वेस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड. Hallelujah. खुदा की बादशाहत के अंदर बीज बोएं. अक्सर का बहुत से लोग बीज बोते हैं लेकिन वो समझते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं इस पास्टर को, इस मिनिस्ट्री को हदिया दे रहा हूं. इट्स नॉट लाइक दैट. आप अपना अजर हरगिज ना पाएंगे. कलाम के अंदर लिखा है, एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले. और मेरा और आपका यीशु मसीह वो अमाउंट पर निगाह नहीं करता. 2 दमड़ियां जब उसने दी तो वो ज्यादा क्या अफजल, ज्यादा उससे पसंद आई. तो मेरे अजीजों, आज से पहले अगर आप खुदा की किंगडम में इन्वेस्ट नहीं करते थे, मैं आपको कहना चाहती हूँ, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड. खुदा की बादशाहत के लिए बीज बोना शुरू कर दीजिए. कभी भी आपके बैंक अकाउंट खाली नहीं होंगे, कभी भी आपका पर्स खाली नहीं होगा, कभी भी आपकी पॉकेट खाली नहीं होगी, बल्कि खुदावंद कसरत की बरकत को, अबंडेंट ग्रेस को आपकी जिंदगी के लिए, ना सिर्फ आपकी जिंदगी के लिए बल्कि नस्ल दर नस्ल, जनरेशनल ब्लेसिंग्स आर गोना ट्रांसफर. आपकी जिंदगी के अंदर नस्ल दर नस्ल बरकत आएंगी. और इसी तरह तीसरी बात जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरे अजीजों, खुदा के खादमीन, खुदा के चुने हुए लोग, खुदा के बरगजीदा लोग, दे आर ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट. अक्सर औकात आप खादमीन की बातों को नेगलेक्ट कर देते हैं, आप खादमीन की बातों के मुताबिक अमल नहीं करते. मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के अंदर उसने कहा, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ. ही हैज गिवन अस द अथॉरिटी. उसने खादमीन को इख्तियार बख्शा. उसने कहा, सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो, इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आओ और बीमारों को शिफा दो. इसी तरह तीसरा हवाला, तीसरा करैक्टर जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, पहला करैक्टर जो मैंने शेयर किया वो मूसा का था. और मूसा के साथ हमने खुदा को देखा कि जब खुदा ने मूसा को हुक्म दिया और मूसा ने खुदा के हुक्म को माना तो उसने अपनी जिंदगी के अंदर मौजज़े को हासिल किया. ना सिर्फ मौजज़े को बल्कि मौजज़ात को हासिल किया. और दूसरा करैक्टर, दूसरा टॉपिक जिस पे मैंने और आपने आज बात की, दैट वाज अ यंग बॉय, वो नौजवान लड़का. और दूसरी तरफ हमें कौन नजर आया? यीशु मसीह. जब यीशु मसीह के हाथ में जो कुछ उस बच्चे के पास था, जब वो यीशु के हाथ में आ गया तो यीशु का हाथ जो कुदरत वाला है, यीशु का हाथ जो शिफा वाला है, यीशु का हाथ जो अंधों की आंखों को खोलता है, यीशु का हाथ जो बंजर जमीन को सैराब करता है, उस हाथ के वसीला से मौजज़ा हुआ. और तीसरा टॉपिक, तीसरा करैक्टर जो आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो एक बेवा का है. और मर्द खुदा एलीशा, मैन ऑफ गॉड, खुदा के खादमीन की बातों पर, खुदा के खादमीन भी जो आपको करने के लिए कहते हैं, जब आप उन पर अमल करते हैं, बिकॉज दे आर द चोजन वन, वो भेजे गए हैं, खुदा ने उनको अपॉइंट किया है, खुदा ने उनको भेजा है. आए हम खुदा के कलाम में से ये हवाला देखेंगे. मेरे साथ जरूर अपनी बाइबल को खोलिए. दूसरा सलातीन चौथा बाब पहली 7 आयत. और यहाँ पर लिखा है, और अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत ने एलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन से डरता था, सो अब कर्ज ख्वा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने. दूसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, जो आज हमारा टॉपिक है उसे गौर से सुनिए. दूसरी बात हम देखते हैं, मर्द खुदा, मैन ऑफ गॉड. पहली बात में खुदा ने कलाम किया, दूसरी बात हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट, और तीसरी बात यहाँ पर आज हम सीख रहे हैं मैन ऑफ गॉड. मर्द खुदा ने, एलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है. सेम क्वेश्चन, उसने भी एक कहा कि पहले तो मुझे बता कि तेरे पास घर में क्या है. अक्सर का जब हम नीड में होते हैं मेरे जीजो, हम इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं. वी आर एक्सपेक्टिंग अदर्स
to help us. मेरे अजीजों, आप जब मुसीबत में हो, दुख में हो, परेशानी में, जो कुछ आपके पास है, आप अपने आंसुओं को भी यीशु के आगे बहा सकते हैं. हो सकता है आज आप कह रहे हो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. मेरे अजीजों, you can spend your time in prayer. आप अपने वक्त को यीशु को दे सकते हैं. आप अपने आंसुओं को यीशु को दे सकते हैं. आप यीशु के आगे फरियाद कर सकते हैं. जब आप खुदा के आगे झुकेंगे तो किसी भी चीज की कमी ना होगी. और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लिखा है. उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं. Only one pot of oil. एक प्याला तेल का. और फिर यहाँ पर हम देखते हैं, तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने हमसायों से बर्तन अरायत ले. वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना. फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना. आज अगर हमारे घर के अंदर तंगी हो, मुसीबत हो, कुछ भी ना हो और कोई हमें खुदा का खादम एक्ट ऑफ फेथ करने के लिए कहे, ईमान का अमल करने के लिए कहे, तो हम सोचते हैं शायद इस शख्स का दिमाग मुझे ठीक नहीं लगता. मेरे घर में तो एक कुप्पी, एक प्याला तेल है और ये मुझे कह रहा है कि तू बाहर से अपने नेबर्स से जो है वो बर्तन ले आ. मेरा अजीजों, यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि जब आपने मिरेकल हासिल करना है, जब आपने मौजा लेना है, यू नीड टू बी ओबीडियंट. आपको ताबेदार होने की जरूरत है. आज हम देखते हैं, हम दुआ भी करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, लेकिन ताबेदारी की स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस से हम खाली हैं. हम वो काम नहीं करना चाहते जो खुदा का कलाम हमें करने को कहता है. हम खुदा के खादिमीन की बात पर अमल नहीं करते. तो मेरे अजीजों, लेकिन इस बेवा की जिंदगी से आज मुझे और आपको जो बात सीखने को मिलती है, पहली बात तो वही, whatever is in your hand, whatever is in your house, जो कुछ आपके घर में है, जो कुछ आपके हाथ में है, आज खुदावंद उसी से आपको बरकत देगा. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने क्या किया. इस बेवा ने हुक्म को माना और लिखा वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी. जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला. उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं. तब तेल माकूफ हो गया. तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया. उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें. प्रेज द लॉर्ड. पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो. मेरे अजीजों, खुदा हम की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत पैसेज में से भी जो आज मैंने और आपने पढ़ा. यहाँ पर हमें यही सीखने को मिला कि जब इस बेवा ने हुक्म को माना तो क्या हुआ, खुदा ने इसको बरकत दी. आपने कहानी के अंदर, अभी हवाले के अंदर, इस पैसेज के अंदर सुना कि वो तेल भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे और क्या हुआ, बर्तन कम पड़ गए. Praise the same blessing today. God is releasing to you and your family. Hallelujah. आज ईमान के साथ इस बात को डिक्लेयर करती हूँ, यही ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग खुदावंद आपके लिए, आपके फैमिलीज के लिए जारी कर रहा है. ईमान से इस ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए. Praise Jesus. और मेरे अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जैसे ही इस बेवा ने मर्दे खुदा की बात को माना और जो कुछ उसके पास था, God has performed miracle from that thing. आज जो कुछ आपके पास है, खुदावंद उसी को लेगा और मौजज़ा करेगा. और फिर मेरे अजीजों, ये ब्लेसिंग जो मेरा और आपका खुदा देता है, this is a overflowing blessing. ये लबरेज बहने वाली, ना सिर्फ आप सैराब होंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपसे सैराब होंगे. फिर आपको लुका के रखने दी, छुपा के रखने की जरूरत नहीं है. आज मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, वो कहते नहीं, छुपा के ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना नहीं. मेरे अजीजों, when God is gonna bless you, जब खुदावंद आपको बरकत देगा, the others are gonna see that God has blessed you. दूसरे देखेंगे कि कैसे खुदावंद ने आपको सैराब किया और फिर खुदावंद abundance grace को और आपकी जिंदगी के अंदर लाएगा. and today you will get his grace. आज आप उसके फजल को हासिल करेंगे, उसकी बरकत को हासिल करेंगे. और मेरे अजीजों, his grace
is sufficient for you and your family. उसका फजल आपके लिए, आपके खानदान के लिए काफी है, ताकि आप बीमारियों से रिहाई पाए, मुश्किलात से रिहाई पाए, इब्लीस के शिकंजे से निकल सके, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को हासिल करें. आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, जो कुछ आपके पास है खुदा को दे दीजिए. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, दुआ में झुक जाइए. उससे कहिए आज मैं कमिट करती हूँ, मैं अपना टाइम तुझे दूंगी, मैं तेरे हजूरी में झुकूंगी, दुआ करूंगी. आपको अच्छी आवाज दी है, स्टार्ट वर्शिपिंग द लॉर्ड. खुदावंद की वर्शिप करना शुरू कर दीजिए. उससे कहिए आज से मैं तेरी परस्तिश करूंगी, परस्तिश करूंगा. इसी तरह मेरे अजीजों, कोई भी काम आप खुदा के लिए कर सकते हैं, स्टार्ट डूइंग इट. आप शुरू कर दीजिए. अक्सर औकात आप अपने पास देखते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. रॉड, लाठी, लकड़ी की सादा सी थी, लेकिन जैसे ही खुदा ने हुक्म दिया, the same rod become the miracle working rod. वही लाठी मौजज़ात की लाठी बन गई. इसी तरह मेरे चीज़ों, 5 रोटियां और 2 मछलियां, नथिंग. आज घर में वैसे ही कोई थोड़े से गेस्ट आ जाए, बड़ा खाना आप बनाते हैं, वो भी कम पड़ जाता है. क्यों? बिकॉज ब्लेसिंग नहीं है, बरकत नहीं है. तो मेरे अजीजों, अपने घर के किचन की चीजों को खुदा के हाथ में दे दीजिए. कोई पास्टर आता है, स्टार्ट सर्विंग. बहुत से लोग क्या करते हैं, लोगों को जो है हिचकिचाते हैं खाना खिलाने से. कोई मेहमान आ जाए तो उसको पूछते ही नहीं है. मेरे चीज़ों, नहीं. जब हम दुआ करते हैं तो मैं हमेशा खुदा को कहती हूँ, खुदावन जो भी हमारे घर में आए वो शेर और आसूदा होकर जाए. तो मेरे चीज़ों, जब आप इस सोच को अपने अंदर लेंगे कि आप दूसरों को सैराब करना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग फॉर अदर्स, जब आप दूसरों को बरकत देंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा. फिर तीसरी बात, बेवा थी, सिर्फ एक कुप्पी तेल था. मर्दे खुदा की बात पर अमल किया और खुदा ने उसी तेल को ब्लेस किया. और फिर मर्द खुदा उसको क्या कहता है, अपना कर्ज भी उतार दे और कर्ज के साथ जो बाकी बचा उससे तू और तेरा खानदान गुजारा कर. मेरे अजीजों, सारा कर्ज खत्म हो जाएगा. क्यों? रुपए पैसे के अंदर बरकत नहीं है. बिकॉज वी आर नॉट गिविंग आवर टाइथ टू जीसस क्राइस्ट. हम अपनी देयकी नहीं देते. हम अगर समटाइम्स देते भी हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने पास्टर को दिया. नहीं मेरे अजीजों, आप जब मुट्ठी को खोलते हैं, उसको खुदा की बादशाहत के लिए इन्वेस्ट कीजिए. और इस सोच से कि यू आर sowing the seed in the kingdom, आप खुदा की बादशाहत में बीज बो रहे हैं. जब आपकी सोच ये होगी तो खुदावंद आपको बरकत देगा. प्रेज द लॉर्ड. और अगर आज से पहले आपकी जिंदगी के अंदर नाकामी थी, पस्ती थी, आप परेशान थे, आप सोच रहे थे कि आप कुछ भी नहीं है, तो मेरे अजीजों, आज उसे कहिए तो मेरा दिल ही ले ले. अपना दिल उसे दे दीजिए. जब दिल उसे दे देंगे तो he is gonna make you a new person. वो आपको नया इंसान बनाएगा और आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी. वो आपको बरकत पर बरकत देगा. आए मेरे अजीजों, अगर आज से पहले आप नाकामी में थे, आज से पहले आप गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे थे, आपकी जिंदगी में मौजज़ात नहीं थे, आज आप चाहते हैं कि जो कुछ आपके पास है आप उसे खुदा के हाथ में देना चाहते हैं. अगर आज आप उसे अपने हाथ को ही देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, यीशु तू मेरा हाथ थाम ले. जब वो आपका हाथ थाम लेगा, आप मट्टी को भी हाथ लगाएंगे. मट्टी सोने की कीमत अदा करेगी. जिस भी काम को हाथ लगाएंगे, बरकत पर बरकत पाएंगे. वो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा, आपका खुदा, वही ब्लेसिंग जो उसने अपने खादमों को दी, वही आपको आज देने को है. अगर मेरे चीज़ों, आज से पहले आप इब्लीस के साथ जिंदगी बसर कर रहे थे, गुनाह में थे, तो आज आपके पास मौका है. आइए अपना दिल यीशु मसीह को दीजिए, अपना आप यीशु को दीजिए और उसे कहिए, मुझे अपना बेटा, अपनी बेटी बना ले. आज के बाद मैं तेरे साथ जिंदगी बसर करूं, कसरत की जिंदगी पाऊं और तेरे नाम को जलाल मिले. और मेरे अजीजों, फिर खुदावंद आपको बरकत देगा. और खुदावंद फिर कैसी बरकत देगा? वो कहता है, मैं तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे दस्तरखान बिछाऊंगा. लोग बड़ी कोशिश करेंगे, दुश्मन आपको शिकस्त करने की बड़ी कोशिश करेंगे, बट यू विल लिव इन पीस. आप इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करेंगे, क्योंकि आप यीशु के हाथ में हैं. आपने अपना हाथ, अपना आप उससे थाम दिया है. आए हम मिलकर दुआ करें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जितने देख रहे हैं, अगर आज यीशु को दिल देना चाहते हैं, आए अपने मुंह को खोलिए. स्टार्ट प्रेइंग इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी जुबान में खुदावंद से दुआ कीजिए. उसे कहिए, मुझे माफ कर, मुझे
मुझे अपना बेटा और अपनी बेटी बना ले। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, इंथा Jesus. खारा शांति रे Oh, बेबे yes, बे। Jesus. खुदा Hallelujah. बाप, खुदा बेटे, खुदा Hallelujah. कुदस पा खुदा। खुदावंद आज मैं तेरे पास आती तेरा शुक्र अदा करती खुदावंद बेशक। तेरी आवाज के लिए तेरा शुक्र अदा करती खुदावंद तूने इस्तेमाल किया Yes, Jesus. यकीनन खुदावंद Hallelujah. तेरा कलाम बंद बंद और गुदे गुदे को चीरता है बेशक। तेरा कलाम दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है और तूने हर नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी खुदावंद वी ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड हम तेरे कलाम को इज्जत देते हम तुझे ऑनर देते आज के कलाम का वर्शिप का हम जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को देते और आज जितनों ने अपा खुदा तेरी आवाज को सुना और खुदावंद आज इन्होंने फैसला किया कि आज के बाद ये दिल Hallelujah. तेरे साथ लगाएंगे तेरे हाथ में आ जाएंगे अपना सब कुछ तुझे देंगे अपा खुदा खुदा मैं तेरे आगे मिन्नत करती तेरे कलाम में लिखा जितनों के कसूर तुम माफ करोगे मैं उनके कसूर माफ करूंगा खुदावंद आज तू इनको माफ कर इनको अपना बेटा अपनी बेटी बना ले जब तक जिए तेरे साथ जिए तुझसे लिपटे रहे तेरा पाखरू इनको महफूज रखे तेरा चेहरा इनकी तरफ मतवज्जो हो और ये बरकत पर बरकत पाए और खुदावंद आज जो कुछ इनके पास है अगर कुछ भी नहीं है पा खुदा तो खुदावंद इनके बदनों को इनके घरों Oh, को Jesus. तमाम फैमिली मेंबर्स को मैं तेरे खून में छुपाती और आज खुदावंद मैं तेरा आगे मिन्नत करती इनको बरकत दे इनको बहाल कर आज के बाद तारीकी नाकामी पस्ती यीशु के नाम से इनके खानदानों से इनकी जिंदगियों से जाती रहे और आज के बाद ये बरकत पाए बिकॉज यू आर कॉल्ड देम टू बी एन इनहेरिटेंस ऑफ ब्लेसिंग तूने इनको बरकत के वारिस होने के लिए बुलाया तो आज खुदावंद हम मिलकर इनके लिए तेरी बरकत चाहते ताकि आज के बाद खुदावंद ये जिस भी काम को हाथ लगाए बरकत पर बरकत पाए खुदावंद इनके बदन खुदावंद तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो बेशक। और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले यीशु के नाम से आमीन Amen. आमीन प्रेज द लॉर्ड अभी मेरे चीज़ों आपने खूबसूरत कलाम सुना और मेरा ईमान है जो कुछ आपके पास है इफ़ यू वांट टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुदा के जलाल को देखना चाहते हैं खुदा को दे दीजिए अगर कुछ भी नहीं है तो कहिए खुदावंद मैं अपना आप ही तुझे देता हूँ और सबसे बेस्ट गिफ्ट जो आप खुदा को दे सकते हैं वो आपका दिल है आज से कहिए मैं अपना दिल ही तुझे देता हूँ मेरे दिल को ले ले इसमें अपना घर बना ले ताकि मैं तेरा मकदस बन जाऊं आमीन और जब दिल यीशु को दे देंगे तो यकीनन फिर जब खुदावंद उस दिल के अंदर आ जाएगा तो फिर जो है वो बरकत आएगी सरफराजी Lord. आएगी हालात तब्दील होंगे और फिर बरकत पर बरकत आती है Amen. मैं तो पास्टर इमरान मैं चाहती हूँ जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं जिन्होंने आज का खूबसूरत ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम देखा खूबसूरत कलाम को सुना पास्टर विल्सन के साथ पास्टर जबलून के साथ पास्टर मैनुअल के साथ मिलकर आए हम इनके लिए बरकत की दुआ चाहें आमीन प्रेज द लॉर्ड आए मेरे सीजो अपनी आंखों को बंद कीजिए जहाँ पर भी आपके बदन के अंदर बीमारी है आपने आज खूबसूरत खुदा के खादमों की बातें भी सुनी कलाम की बातें शेयर की गई कलाम को भी सुना और यकीनन खुदा उनका कलाम है जो सब कुछ करने की कुदरत ताकत जोर रखता है जहाँ पर भी आपके बदन के अंदर बीमारी है आप अपनी बीमारी वाली जगह पर अपने दाहिने हाथ को रख सकते हैं अगर आपका पूरा बदन बीमार है तो आप अपना हाथ जो है वो सर पर रख सकते हैं आज हम मिलकर खादम खुदा की खादमा के साथ मिलकर दुआ करेंगे और यकीनन खुदावंद बंधनों को तोड़ेगा बीमार शिफा पाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रुल कुदस खुदावंद यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत खुदावंद एक जिंदगी बख्श दिन के लिए खुदम तेरे प्यार तेरी मोहब्बत के लिए और आज के सारे खुदम दे ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए खुदम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और यीशु के नाम से खुदम देख तेरे खादम मिलकर खुदम देख इन प्यारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं जिन्होंने खुदम देख आज अपनी बीमारी वाली जगह पर अपने हाथ को रखा है तो खुदम देख आज हम तेरे खादम मिलकर तेरी मिन्नत करते हैं कि आज हमारा हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ बढ़ जाए और सर से पांव के तलवे तक की सारी बीमारियां मसीह के नाम में जाती रहे हर तरह की कैंसर की बीमारी मसीह के नाम में जाती रहे टीबी की बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे
गिल्टियां रसौलियां मसीह के नाम में रिमूव हों, जिनके बदन के अंदर खुदावंद एक ट्यूमर हैं, बाप यीशु के नाम में तेरा रूह कुदस खुदावंद एक एक को शिफा दे, जिनके गुर्दे काम नहीं करते गुर्दों की सारी बीमारी मसीह के नाम में जाती रहे, ताकि तेरा रूह कुदस खुदावंद एक एक का ऑपरेशन करे, जिनके पित्ते के अंदर पथरी है या स्टोन है मसीह के नाम में तेरा रूह कुदस एक एक को आज शिफा दे, जिनका खुदावंद एक बदन के अंदर शुगर की बीमारी ब्लड प्रेशर मसीह के नाम में जाता रहे, हर तरह के खुदावंद एक सारी बीमारियों को आज तू यीशु के नाम से उठा, और एक एक खुदावंद एक खानदान के लिए जिंदगियों के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि शिफा दे और तेरा पाक रूह कुदस एक भी लम्हा खुदावंद इन जिंदगियों से जुदा ना हो। जो बांझ हैं बाप उन्हें औलाद जैसी बरकत दे, ताकि यीशु के नाम में तूने खूबसूरत बेटे बेटियों जैसी बरकत देना, ताकि यीशु के नाम में तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि तू बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। आज तू एक एक को छू, बड़ी बरकत है, कमर की दर्द घुटनों की मोरों की तकलीफ मसीह के नाम में जाती रहे। आज खुदम तू एक एक को छू, और आज इन सारी बीमारियों के नामों को खुदम तेरी हसूरी में लाते हैं, ताकि यीशु के नाम में तेरा रूह कुदस जलाली काम करे और बीमार शिफा पाएं, बरकत पाएं, रिहाई निजात पाएं, और तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिले। जब खुदावंद बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, खुदावंद जब स्टडी कर रहे हैं, बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बाहर के दरवाजों को खोल, जिनके पास जॉब्स नहीं उन्हें जॉब प्रोवाइड कर, फाइनेंशियली खुदावंद तू ब्लेस कर और बड़ी बरकत दे, ताकि आज खुदावंद हमारा तेरी हसूरी में झुकना जमा होना खुदावंद तुझे पसंद आए। मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, तरक्की के लिए, बका के लिए दुआ करते हैं, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, पाक फौज के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस इदारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तमाम चर्चेस के लिए, कलीसियाओं के लिए, पास्टर्स के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदावंद यीशु के नाम में तू आज एक एक को छू और बड़ी बरकत दे, ताकि आज के इस ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का इज्जत और जलाल हम खुदम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीजों, खुदा का पाक रुख कसरत से काम करा, ईमान से अपने मौजज़े को रिसीव कीजिए। मेरा ईमान है आज के खूबसूरत प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई। पास्टर ज़बलून, गॉड ब्लेस यू। पास्टर मैनुअल, खुदावंद आपको भी बरकत दे। पास्टर विल्सन, खुदावंद आपको भी बरकत दे। पास्टर इमरान, गॉड ब्लेस यू। ब्लेस यू टू। प्रेज द लॉर्ड। इसी के साथ नाज़रीन वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद।